These are major areas of research in software engineering. Software estimation, software quality, software requirement models, component-based software engineering, product line software engineering, software testing, and computer-assisted software engineering. K stands for computer-assisted software engineering. First of all, we will take a brief introduction of this area. Software estimation. इस तरह इसका एजाज साहब का टॉपिक था, ठीक है, सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन. So, what is the objective of estimation? To set total overall cost of the software products. To estimate cost, then duration and effort. So effort means number of personnel required for proper duration. So if 10 months are required to develop the software, then how many personnel will be needed in each month? To estimate personnel, duration and cost. Although cost is not directly proportional to personnel, because personnel is only one factor for the cost estimation. There may be other cost which may be tangible or intangible, like equipment cost, utility cost, tools cost, and so on. So all these costs will include in cost estimation. Personnel is only one factor. So how many personnel will be required? Whether these personnel will be highly skilled, lower level, middle level, and so on. So that is the basic objective of software estimation. According to the international report, in 2019, 32% projects, 32% software projects throughout the world were successful. 38% were challenged and 30% were failed. So this survey is conducted from the CMMI level 5 organization. So in software industry, the CMM level 5 and SPICE, these are two standards which are used to recognize an industry in the industrial world. These are two standards. In different products, ISO is a standard. For products, manufacturing and products quality, ISO is a standard. But for software, these two standards are used, CMMI and SPICE. SPICE is actually introduced by the ISO, and it has been introduced by Software Engineering Institute. Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University. So they have introduced the standard CMMI. So in some countries of Europe, like Germany, Austria, and Scandinavian countries like Sweden and so on. So SPICE is used in those countries. And in rest of the world, CMMI is used. CMMI stands for Capability, Maturity, Model, Integration. Capability, Maturity, Model, Integration. And SPICE stands for Software Process Improvement and Capability Enhancement. Software
process improvement and capability enhancement. So that stands for SPICE. So SPICE is introduced by ISO and CMMI is introduced by Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University. There are 5 levels of maturity in SPICE as well as in CMMI. So SPICE 5 and CMMI 5. So fifth level is the highest level of maturity. So those organizations which are at CMMI level 5 and SPICE level 5 are considered for this survey. See? So there are about 186 CMMI organization and there are 38 SPICE level 5 organizations. So most of these CMMI level 5 organizations are from India. I think these are 82 or 83. And the second one is USA and third is China. So from these organizations, this survey is conducted every year. So 32% of this software were successful, 38% were challenged, and 30% were failed. Successful mean those projects which have been completed within estimated time. Those projects which have been completed within estimated times, those are called successful projects. So it means 68% are actually unsuccessful because these are not successful. 38% are challenged. Challenge means those projects which could not be completed within the time, within the estimated time, but they have still been continued. They have been continued. It means additional funds will have to be allocated for those projects, and they are continued. The failed projects are those projects which have been discarded due to over time or over budget. Whether either these have been over budgeted or over time, so that is why these have been discarded. So 30% of the projects have been discarded, which incur a loss of $4 billion. $4 billion loss to the software industry in 2019. So that is due to poor estimation. That is due to poor estimation, whether the cost was poorly estimated, or time was poorly estimated, or the personnel were poorly estimated. See? So that is the main importance of software estimation. Software estimation for the conventional methodology of software development, the software estimation is mature. ठीक, मतलब कोकोमो है, ठीक, या फंक्शन पॉइंट है, ठीक है. तो ये कोड बेस्ड जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट थी उसके लिए तो ये बिल्कुल सही काम है, ठीक, क्योंकि कोकोमो की बेसिक एक्सप्रेशन है a मल्टीप्लाई बाई साइज पावर 3. ठीक. Now this size is determined in the form of lines of code. Lines of code. So 3 mean 3 kilo lines of code. 3000 lines of code. ठीक. तो अगर आप C लैंग्वेज में लिख रहे हैं, कोबोल में लिख रहे हैं, पास्कल में लिख रहे हैं, तो उसमें तो लाइंस ऑफ कोड्स होते हैं. अगर आप विजुअल बेसिक यूज़ कर रहे हैं तो विजुअल बेसिक में आपने फॉर्म सेलेक्ट किए, कंपोनेंट सेलेक्ट किए, उनकी प्रॉपर्टीज सेलेक्ट की, एक लाइन भी आपने नहीं लिखी, प्रोग्राम बन गया. ठीक. तो अब उसमें तो लाइंस ऑफ कोड नहीं है.
उसमें जो प्रोग्राम की बेसिक डिफिनीशन है, प्रोग्राम की बेसिक डिफिनीशन है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। विजुअल बेसिक में आप एक भी लाइन नहीं लिखते और प्रोग्राम बन जाता है, ठीक है। तो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन वाली डिफिनीशन तो ख़त्म हो गई, इसमें तो कोई लाइन है ही नहीं, ठीक। तो अगर लाइन ऑफ कोड नहीं है, ठीक, तो एफर्ट तो इसको इसके लिए भी चाहिए थी, ठीक है। हो सकता है इसको डेवलप करने में भी हफ्ता लगाओ, ठीक है। डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी है, उसके डिफरेंट कंपोनेंट सेट करने हैं, उसकी प्रॉपर्टीज सेट करनी है, तो एफर्ट तो यहाँ पे भी चाहिए था, ठीक है। लेकिन लाइन ऑफ कोड नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कोकोमो तो फिर इस पर यूज़ ही नहीं हो सकता, ठीक। फंक्शन पॉइंट भी उस वक्त यूज़ होगा जब आप फंक्शन डेवलप करेंगे। आपने कुछ किया ही नहीं, लिखा ही नहीं, ठीक है, तो फंक्शन पॉइंट भी नहीं यूज़ हो सकता, ठीक। तो जाहिर है इसके लिए कोई नया मेथड यूज़ करना, ठीक। सो फॉर ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल मेथडोलॉजीज, फॉर कन्वेंशनल टूल्स, द सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन इज मेच्योर, बट फॉर न्यू मेथडोलॉजीज एंड फॉर न्यू टेक्नोलॉजीज the software estimation normally fails. So the accuracy of software estimation for new methodology is not mature. So that is why it is needed that the estimation should be performed for new development methodologies and for new tools. So VB is a tool, Agile is a methodology. Agile is a methodology. So software cost estimation for Agile, software cost estimation for extreme programming. So these are software development methodologies. So software cost estimation will be needed for new methodologies as well as 4th generation tools. So VB, Developer 2000, Delphi, these are called 4th generation tools, 4G tools. So those tools which are either based on artificial intelligence or on component development model, those are 4th generation tools. So software estimation is needed for new technologies and new methodology. So that is the need for software cost estimation. The next is software quality. What is quality? क्वालिटी की डिफिनेशन क्या होगी सर? कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं सर इसको, किसी भी मतलब चीज़ को, या स्टैंडर्ड्स, एक स्टैंडर्ड्स को। सर रूल्स एंड सम स्टैंडर्ड्स आर स्टैंडर्ड्स। देखिए बिल्कुल सादा लफ्ज़ में चले, आप कहते हैं रूल्स, आप कहते हैं स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड जी सर। कि मतलब सर जो सॉफ्टवेयर बने वो क्या उस रूल्स और सॉफ्टवेयर को छोड़ के, मैंने क्वालिटी सर जितने सॉफ्टवेयर को छोड़ के। सर अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं कि इस चीज़ का स्टैंडर्ड आया तो क्वालिटी भी इसकी इतनी अच्छी होगी। देखिए स्टैंडर्ड्स क्या होता है, पहले ये तो बताएं सर। एक स्पेसिफिक सर बेंचमार्क कहता हूँ सर। जितनी टर्म आप यूज़ करते जाएंगे ना, आप उसको कॉम्प्लिकेटेड करते जाएंगे। मैंने सिंपल पूछा है क्वालिटी क्या है, आप कहते हैं इस पेन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो इससे आपकी क्या मुराद है? मैंने सॉफ्टवेयर नहीं कहा, मैंने क्वालिटी पूछा। आप ये मतलब है, ये तो लेमैन भी कहता है ना कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो इस क्वालिटी बहुत अच्छी है, इस फिक्रे से मुराद क्या है? आप कहते हैं इस कोट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो कहते हैं लंडे में। ठीक, आप कहते हैं इस कोट की क्वालिटी, दोनों खरीद रहे हैं, ठीक है। आप कहते हैं इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैं लेता हूँ। वो कहते हैं नहीं इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं, मैं नहीं लेता। आपने ले लिया, उसने नहीं लिया, तो ये क्या था? सिंपल इसमें तो ये होगा ना यूज़र सेटिस्फेक्शन। अगर वो सेटिस्फाई है तो वो कहते हैं क्वालिटी अच्छी, आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप कहते हैं नहीं अच्छी, ठीक। वेल एंड गुड। अब मैं अगर ये पूछता हूँ कि अगर इसकी क्वालिटी अच्छी है तो कितनी है,
जी सर। हर वो चीज़ जिसको आप अच्छा या बुरा डिक्लेयर करते हैं उसका कोई स्केल होना चाहिए। आप कहते हैं 5 किलो, जी सर। ये 5 किलो है, मैं तोलता हूँ 5 किलो है तो ठीक है, वरना नहीं, ठीक है। आप कहते हैं 2 मीटर, मैं नापता हूँ, अगर 2 मीटर है तो है, वरना नहीं है। जी सर। आप कहते हैं क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, मैं कहता हूँ कितनी अच्छी है, आप कहते हैं ये 75% क्वालिटी इसकी है, तो मेरे पास भी तो कोई ऐसा स्केल होना चाहिए, ठीक है, कि मैं कैलकुलेट कर सकूं कि वाकई 75% है या नहीं है। तो अगर ये क्वालिटी क्वांटिफाई नहीं हो सकती, ठीक है, तो फिर ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। So from management perspective, quality is simple level of user satisfaction. But for software industry or for engineering, any engineering discipline, quality is not qualitative. Quality must be quantitative. Quality must be quantitative. जब आप ये करते हैं, कोई प्रोडक्ट देखते हैं, उसके ऊपर लिखता होता है QA सर्टिफाइड, ठीक, क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफाइड। तो उन्होंने अपने लिए, ठीक है, एक क्वालिटी का लेवल रखा होगा कि इस लेवल तक अगर आती है, यानी 75% इसकी क्वालिटी है तो फिर इसको पास करेंगे, वरना नहीं करेंगे, ठीक। तो 75% क्वालिटी किस तरह मेजर होगी, ठीक, 75% क्वालिटी किस तरह मेजर होगी। सो क्वालिटी इटसेल्फ इज नथिंग, इट इज एक्चुअली कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। तो इसके एट्रीब्यूट कौन कौन सा सर? क्वालिटी के एट्रीब्यूट। देखिए, आप कोई भी प्रोडक्ट अगर लेते हैं, उसमें आपके इत्मीनान की जो 2 बेसिक वजूहात हो सकती है, वो क्या हो सकती है? सर गुड और अच्छी होगी या बुरी होगी सर? नहीं, बुरे और अच्छे होने के लिए, बुरी और अच्छी को छोड़ के आप अगर इस चीज़ को ख़रीदना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि उसको ख़रीद सकें? सर क्या हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है? एक हो गई। दूसरी क्या ये सर हमारी कॉस्ट भी तो हम सर कास्ट तो बात, कास्ट का क्वालिटी के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, ठीक है। अगर क्वालिटी अच्छी हो तो कीमत नहीं देखी जाती, ठीक है ना, ठीक है। पहली आपकी ये है कि रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है, ठीक, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है, ठीक है, ये अलग है। ये जिस चीज़ के लिए बनाया गया वो सारे फंक्शंस ये प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहा है। आपकी रिक्वायरमेंट हो सकता है 2-3 हो, लेकिन बनाने वालों ने ये क्लेम किया है कि इसमें ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ठीक है। तो क्या वो सारी चीज़ें हैं या नहीं है, ठीक। और दूसरा ये है कि जो चीज़ें हैं वो सारे के सारे ठीक फंक्शन करते हैं या नहीं करते, ठीक। तो करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस, ठीक, these two are basic parameters of quality. If a product is not correct, then there is no question of quality, ठीक। अगर करेक्ट नहीं है तो क्वालिटी का सवाल ही नहीं है, ठीक। इनकम्प्लीट ली जा सकती है, ठीक। अगर वो करेक्ट है लेकिन इनकम्प्लीट है तो ली जा सकती है, लेकिन अगर करेक्ट नहीं है तो बिल्कुल नहीं, ठीक। सो करेक्टनेस इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, बेसिक पैरामीटर ऑफ क्वालिटी, ठीक। इफ ए प्रोडक्ट इज नॉट करेक्ट, इफ ए सॉफ्टवेयर इज नॉट करेक्ट, देन देयर विल बी 0% क्वालिटी, ठीक। करेक्टनेस को अगर हम डिफाइन करेंगे कि द एक्सटेंट ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर विच it contains number of faults in the product, ठीक। मिस्टेक, फॉल्ट और एरर तीनों के मानी गलती होती है जी, फर्क क्या हो?
What is the difference between mistake, fault and error? सर ये डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिहाज से डिफरेंट चीज़ें बोली जाती हैं सर। नहीं, एक ही कंपोनेंट के लिहाज से ही होते हैं। Like जिस तरह हम मिस्टेक, सर कहते हैं- फॉल्ट और एरर। मिस्टेक, गलती और फॉल्ट, गलती। खामी नहीं सर, वो ये नुक्स, नुक्स जी सर। ये एरर। अरे सर ये कह सकते हैं सर मिस्टेक बेसिकली इज कमिटेड बाय द ह्यूमन। आप गलती करते हैं, आपकी गलती की वजह से प्रोडक्ट में नुक्स आता है, ठीक है, और फिर जब ये प्रोडक्ट एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, जब ये प्रोडक्ट चलता है तो उसके नतीजे में एरर आता है, ठीक। तो आपकी मिस्टेक की वजह से नुक्स आता है, फॉल्ट आता है, ठीक है, और उस फॉल्ट की वजह से एरर आता है, ठीक। तो उसमें जितने फॉल्ट कम होंगे वो उसकी करेक्टनेस है, एरर नहीं, मिस्टेक नहीं। मिस्टेक आपने की, एरर उस वक्त आएंगे जब उसमें फॉल्ट होंगे, ठीक। आपने फार्मूला गलत लिखा, आपने गलती की, ठीक है, सॉफ्टवेयर में नुक्स आ गया, ठीक है। अब ये सॉफ्टवेयर चलेगा तो रिजल्ट तो गलत होगा, तो जो गलत रिजल्ट आएगा वो एरर होगा, ठीक है। उसमें फॉल्ट आया है, उस फॉल्ट की वजह से वो करेक्ट नहीं रहा, ठीक। सो द एक्सटेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक, द एक्सटेंट ऑफ सॉफ्टवेयर which deals with the number of faults in the product is called correctness, ठीक। completeness is the extent of software for which it fulfill its all objectives, ठीक। आपको यूनिवर्सिटी ने कहा है कि हमें सॉफ्टवेयर बना के दे, ठीक है, एग्जाम सेक्शन, फिनांस सेक्शन, एकेडमिक सेक्शन। आपने फिनांस और एकेडमिक का तो बना लिया, ठीक है, एग्ज़ाम का नहीं बनाया, और जो फिनांस और एकेडमिक का बनाया उसमें कोई गलती नहीं है, तो आपने जो बनाया वो करेक्ट है, कंप्लीट नहीं। कंप्लीट आपको 3 मॉड्यूल बनाने थे, आपने 2 बनाए, ठीक, सो दैट इज़ नॉट कंप्लीट, ठीक। तो अगर वो कंप्लीट नहीं है लेकिन करेक्ट है तो एक्सेप्टेबल हो सकता है, ठीक है ना। फिनांस और एकेडमिक का बिल्कुल ठीक है तो वो ले लेंगे। आपने एग्ज़ाम का बनाया नहीं है, वो बाद में भी बना सकते, ठीक। सो करेक्टनेस इज द बेसिक एट्रीब्यूट, कंप्लीटनेस इज द सेकंड वन। सर मतलब सर सॉफ्टवेयर क्वालिटी में सिर्फ हम करेक्टनेस को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि कंप्लीटनेस को। यूर कस्टमर, आप नहीं। अच्छा जी सर, कस्टमर, आपका कस्टमर आपका सॉफ्टवेयर उस वक्त लेगा जब वो करेक्ट होगा। अगर सर कंप्लीट नहीं हो तो फिर वो तो फिर भी ले लेगा ना, फिर भी ले लेगा, ठीक है। जो मॉड्यूल बाकी रह गए हैं वो कहेगा कि ये बना दें, ठीक है। जो मॉड्यूल बने हुए हैं वो करेक्ट हैं तो ले लेगा, जो बाकी रह गए वो कहेगा बना दें, ठीक। नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी के लफ्ज माने क्या है? सर चांस ऑफ फेल्योर सर कह सकते हैं। नहीं, लफ्जी माने उर्दू में बताएं, उर्दू अंग्रेजी का अंग्रेजी में मानी न बताएं, फिर और ज़्यादा मतलब सर कि उसमें एरर के चांस अगर सर कम हो, सर मतलब उसमें एरर तो उर्दू का लफ्ज नहीं है, सर, उसका मतलब उर्दू उसमें- में मानी क्या है? मतलब सर जिसके अंदर कितनी सर उसकी लाइफ कह सकते हैं सर। फॉर एग्जांपल एक वॉशिंग मशीन हम कहते हैं कि ये रिलायबल है बहुत तो ज़्यादा। मैं यही पूछ रहा हूँ रिलायबल क्या होता है, उर्दू में मानी क्या है? मैं तो ये तो नहीं पूछ रहा कि क्या मशीन रिलायबल है या नहीं, मैं कहता हूँ मानी क्या होती है? उर्दू में सर रिलायबल काबिल एतमाद, ठीक है, जिस पे रिलाई किया जा सके। रिलाई माना जिस पे इन्हिसार किया जा सके, ठीक है। तो काबिल एतमाद, काबिल इन्हिसार है, जिस पे आप इन्हिसार कर सकते हैं। इन्हिसार आप उस चीज़ पे कर सकते हैं। अब आपने जो कहा इन्हिसार आप उस चीज़ से कर सकते हैं जिसमें एरर कम आए, ठीक। और एरर हमने पहले कह दिया कि चलने की वजह से, ठीक, चलने के दौरान, ठीक, उसमें जो नकाए सामने आते हैं वो एरर हैं, ठीक है। उसमें जो नुक्स है, उस नुक्स की वजह से जो नकाए सामने आते हैं वो एरर है, ठीक।
तो रिलायबिलिटी मीन द नंबर ऑफ एरर्स ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन, ठीक। करेक्टनेस है नंबर ऑफ एरर्स, नंबर ऑफ फॉल्ट्स ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, ठीक, एंड दिस इज नंबर ऑफ एरर्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। अच्छा सर क्या बता करेक्टनेस ड्यूरिंग करेक्टनेस क्या करें? So correctness, completeness, reliability. These are basic. If a software is not correct, not complete, not reliable, then that software will not be accepted. So these are the basic objective of software development. Basic objective of software development. The next is efficiency. And effectiveness. Both are interrelated, but both are entirely different. Efficient. Efficient is basically a comparative term. When two products are compared, then that product will be considered more efficient if it performs exactly the same task but in less number of resources. एक सिंपल बात, ये अगर दो टीवी हैं, दोनों बिल्कुल एक जैसा काम करती हैं, दोनों की प्राइस भी सेम है, ठीक है, जो चीज़ आपको चाहिए वो दोनों में मौजूद है, तो अब आप क्या चीज़ देखेंगे? सर ये कि जो बिजली कम यूज़ करते जो बिजली कम यूज़ सर करते जी सर, ठीक है ना, रिसोर्सेज कम यूज़ करते, ठीक। सो सिमिलरली व्हेन टू सॉफ्टवेयर आर कंपेयर्ड, दैट सॉफ्टवेयर विल बी कंसिडर्ड मोर एफिशिएंट इफ़ इट नीड्स लेस रिसोर्सेज। उसको रैम कम चाहिए, उसको हार्ड डिस्क कम चाहिए, वो पुराने कंप्यूटर पे चल सकता है, ठीक, तो फिर वो मोर एफिशिएंट। effectiveness, effectiveness is actually if the product has been made correctly, ठीक। एक है doing the right thing, doing the right thing, दूसरा है doing the thing right, doing the right thing, और दूसरा है doing the thing right। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि write a program to write your name 100 times, क्या करें? प्रोग्राम क्या होगा? राइट प्रोग्राम सर टू राइट योर नेम 100 टाइम्स, मतलब अपने नाम को 100 दफ़ा लिखो। जी सर। क्या कि प्रोग्राम में क्या होगा? प्रोग्राम मतलब जो मेरा नाम होगा सर वो 100 दफ़ा प्रिंट क्या करेंगे? स्टेटमेंट बताएं। तो सर मतलब प्रोग्रामिंग में सर स्टेटमेंट जी प्रिंट एफ सर यूज़ करेंगे, प्रिंट एफ तो यूज़ करेंगे 100 दफ़ा। जी सर। जी जी सर। आप सर या लूप चला देंगे फॉर, लेकिन दो जी सर। अगर प्रिंट ऐप 100 दफ़ा करेंगे, उसको चलाएंगे तो आपका नाम 100 दफ़ा आएगा या नहीं है? आएगा सर। अगर आप लूप चला देंगे, ठीक, रन करेंगे तो एग्जैक्टली वही रिजल्ट आएगा या नहीं है? बिल्कुल आएगा सर। देखने वाला क्या ये बता सकेगा कि इसमें 100 दफ़ा प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है या लूप चला है? नहीं बता सकते। ये तो डेवलपर सर, क्योंकि देखें बात ये, मैंने जो आपको टास्क दिया था उस टास्क के मुताबिक तो दोनों ठीक, डूइंग द राइट थिंग तो हो गया ना, लेकिन लूप वाला उससे बेहतर है, ठीक है, क्योंकि वो सही तरीके से बनाया गया, सही काम सही तरीके से भी हुआ है, वो सही काम तो हुआ है लेकिन सही तरीके से नहीं हुआ, ठीक है। सो दैट इज़ नॉट इफेक्टिव, ठीक, जिसमें 100 दफ़ा प्रिंट स्टेटमेंट है, दैट इज़ नॉट इफेक्टिव। So the software should not only be efficient but also effective, ठीक, software should not be efficient but also effective, it should not be made correctly, ठीक, but also it should be correct, ये खुद करेक्ट हो और करेक्ट तरीके से भी बनाया गया हो, ठीक। तो जब आप ये करते हैं ना, टेस्टिंग करते हैं,
तो टेस्टिंग में एक होती है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और एक होती है वाइट बॉक्स टेस्टिंग, दोनों में फ़र्क है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और वाइट बॉक्स टेस्टिंग। जब प्रोग्राम को आप सिर्फ चला के देखें तो ये ब्लैक बॉक्स है, ठीक है ना। आपको ये पता नहीं है कि प्रोग्राम बना किस तरह है, आप सिर्फ उसका रिजल्ट देख रहे हैं, ब्लैक बॉक्स है ना, बंद है। तो जब आप उसकी सिर्फ एग्जीक्यूशन देखते हैं तो ये ब्लैक बॉक्स, जब आप उसकी कोडिंग देखते हैं तो ये वाइट बॉक्स, ठीक। तो कोडिंग में बेसिकली आप उसकी इफेक्टिवनेस देखते हैं, ठीक, तो उसकी कोडिंग सही तरीके से हुई है या नहीं, ठीक। दी नेक्स्ट इज रोबस्टनेस। मानी क्या है? रोबस्ट का मानी ये होते हैं कि जिसमें कुव्वत बर्दाश्त, ठीक, कुव्वत बर्दाश्त। सॉफ्टवेयर विल बी रोबस्ट if it maintains its performance with the passage of time. If it's maintain its performance with the passage of time. आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, जो ही विंडो चलती है उस वक्त आप एक प्रोग्राम चलाते हैं, वो बहुत तेज़ चल जाता है, ठीक। कंप्यूटर चल रहा है, 1.5 घंटे बाद वही प्रोग्राम चलाते हैं, ठीक है, तो वो प्रोग्राम लोड होने में भी 5 मिनट ले लेते हैं, ठीक, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लोड ज़्यादा हो चुका है, वो उस लोड को टॉलरेट नहीं कर रहा, ठीक है, उसकी